in making this task one with which we can go, putting an approach of, if I don't have this, I have a right to have this more than somebody else has a right to have something else. It is that order which matters. So, however, one deep issue which comes in all of this, is of course that why do we divide society at all? To say this person is poor, that person is not poor. Why can't we have, as a lot of activists, for example, on the right to food issue nowadays, say, why don't we have some universal? So have a universal PDS or universal targets. We do have universal targets. In the right to education, it is a universal target. All children will go to school. And in many other things it is. Obviously, the problem with universal targets is you can't do everything universal at one go, moment in time. It takes time. And there has to be, therefore, the idea of getting progressive realization of a universal right. Give everybody else, minus of course those who are clearly rich, you could give them something like 25 kilos, and to make it balanced both on the food side as well as on the budgetary side, you have to price that food at something about 80% of MSP. That is, the APL price would rise from what it is now, be slightly below, rise very close to the MSP, but remains it. Poor those who identify as the poor, or to the states in terms of certain guidelines that you've got to spend on these things. All of this is, of course, my personal suggestion. There is nothing in government of India which will buy any of this. The net result of that would be that the state of Bihar would have 90 lakh families who would have a right collectively to about 3,500 crore every year. And we would have PDS grain not at 3 rupees, 6 rupees, 4 rupees, but at 8 and 11 rupees. Honorable Member of Planning Commission, UNDP and FAO Chief Dr. Gavin Wall, Mr. Jerry Rogers, Dr. Shailendra Dasgupta, Dr. Anak Sharma, my friends in the audience, ladies and gentlemen. I'm very happy to be at this meeting, although I must say that I really enjoyed Abhijit Sen, both for giving us a very detailed outline of the very practical things that are going on in poverty studies, but towards the end also raising the larger technical and philosophical issues of poverty numbers as a background for policy and planning. Pradhan Harishankar Prasad has been talked about here, and Jerry Rogers is here. As a very young man at the University of Pennsylvania, and did recall where the Wharton School and the Graduate School of Economics are there. I was walking down to my office, and my teacher Larry Klein, who was one of the earlier winners of the Nobel Prize, gave me a paper. And he said, this is by a chap called Prasad. It's from a place called Ranchi. This was a paper by Pradhan Harishankar Prasad, and a journal was coming up, which is now a very well-known journal called the International Journal of Economic Development. And Pradhan had written it from Ranchi. Mr. Chief Minister, there is something to be said for investing in higher education in Ranchi. Well, I'm speaking figuratively. So I gave him that paper back after 3 days, and he said, what do you say you did that? I said, I wish I had written it. And it was published in one of the earliest volumes of that journal, and Pradhan later on wrote a book called Growth with Employment, which in terms of the mathematical theory of employment left very little undone. Roughly at the same time, a young Britisher whose name was Jerry Rogers, with his French wife Janine, who is here,
went to North Bihar and was doing field studies, which he talked about. I didn't know that. I met Rogers when he was in ILO building up a global model of for the Bachuay, where population and income distribution was integrated into planning. At that time, we had done the poverty study, the official poverty line, as Abhijit calls it, which came from a task force that I chaired, 100%. But that work that he did in Bihar, because everybody argues that the income that you get is because of the productivity that you have, that standard economic theory. And Rogers argued that it is the social conditions in which you work. He put the arrows the other way around and wrote a classic paper on labor markets. Well, anyway, so Bihar is very much there in our blood. And for every red-blooded Indian, economic development in Bihar and UP are matters of great concern. These have been the cradle of India's civilization and where the areas from where the freedom movement was fought. We cannot have economic development in India of a sustained basis without economic development in Bihar and UP, and I am glad that the Planning Commission member has talked about some of these things in practical terms. I would urge the authorities, we have got a galaxy of economists here, both from home and abroad. It is quite obvious that the state is undergoing transformation for which its leadership needs to be congratulated. And Dr. Sen has given you the figures. I would urge the authorities to lay down in business-like terms how this group, which is this research group of Indian economists, economists from the rest of the world, economists who are interested in India and Bihar, how this group can assist the government in the near future to further research in the medium term. And Gavin Wall, I wrote a report for him about a year ago on the work of the FAO in South Asia, in very practical terms, gave you an understanding that there will be support for this kind of work. I have welcomed the Tendulkar Committee because I have been arguing that the poverty line, which emerged from a task force that I chaired, which is called the official poverty line, the paper that has been circulated here by Datta called the Bharat poverty line, that is no longer relevant at all in India today. I have been saying this for the last 2 decades. And in fact, we set up the Latawala committee to do it. And I think Mr. Tendulkar needs to be congratulated for making a break with that. What I'm not too happy with is the fact that he has again from the official poverty line, let's not blame the official, let's call it the Alag poverty line so that the blame is on me. He has taken the urban poverty line and he now calls it the national poverty line, which the Planning Commission, according to newspapers, has accepted for food security purposes, but according to what Mr. Sen has accepted in total now, what will happen is something that we will learn as we go along. Thank you. प्रोफेसर वाई अलग साहब, प्रोफेसर अभिजीत सिंह साहब, प्रोफेसर विद्वतजन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, इनॉग्रल सेशन में ही हम लोगों ने अनेक महत्वपूर्ण लोगों के विचार सुने। मैं सबसे पहले अलक नारायण शर्मा जी को, सहवाल गुप्ता जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने फिर से इस विषय पर ख्याति प्राप्त लोगों को बुलाकर एक परिचर्या का आयोजन किया। लगभग 3 साल पहले पटना में ही आप दोनों के अलावे एनसिना इंस्टीट्यूट ने मिलकर पॉवर्टी पर एक बड़ा कार्यक्रम किया था। उसमें भी
देश के और देश के बाहर के अनेक अर्थशास्त्री आए थे और फिर वहां से एक चर्चा चली थी। अब ये दावा करना तो कहाँ तक सही होगा कि उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर से इस बात पर चर्चा शुरू हुई। जैसा लक्ष्मीनारायण शर्मा जी कह रहे थे कि इंक्वायरी हुई पीएमओ से, प्लानिंग कमीशन से, लेकिन फिर भी ये तो आपका काम है कि उससे कुछ चर्चा शुरू हुई या नहीं हुई, लेकिन फिर भी चर्चा शुरू हुई। प्लानिंग कमीशन में तेंदुलकर साहब की कमेटी ने काम करना शुरू किया। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एनसी सक्सेना साहब को कहा गया कि आप आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाए इस पर काम करें। तेंदुलकर साहब को कहा गया कि नंबर्स के बारे में क्या होना चाहिए। और फिर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बिहार में क्या कुछ किया जा सकता है। इस पर भी लोगों ने अपने विचार रखे कि मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं 2-4 टिप्पणियाँ करूँगा। बाकी तो आप सब विद्वत जन अर्थशास्त्री इस विषय पर बेहतर ढंग से चर्चा करेंगे और जो चर्चा का नतीजा होगा उसका हम सब लोग लाभ उठाएंगे। अब चाहे आप जितना सोच लें कि इतना ग्रोथ हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, पॉवर्टी घटी है, गरीब लोगों की संख्या स्वाभाविक तौर पर घटनी चाहिए, ये आप जितना सोच लें, लेकिन मैं पूरे देश का तो दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपने बिहार का और निरंतर रूरल एरिया को ही मैं विजिट करता रहा हूँ पार्लियामेंट। और अभी बिहार का काम संभालने के कारण बहुत बार मैं जाता हूँ और बिहार के अलग अलग जगहों पर और खासकर ग्रामीण इलाकों में जाता हूँ। तो मेरी अपनी समझ है कि बहुत फर्क नहीं पड़ा। हम लोगों को सबसे पहले उस स्वामी में नहीं रहना चाहिए कि बहुत बड़ा फर्क आ गया। या जब हम देखते हैं कि बिहार का ग्रोथ हो रहा है, इन दिनों बिहार की ग्रोथ पर कई स्टोरी लिखी जा रही है, अच्छा लगता है सुनकर, लेकिन जब हम देखते हैं कि इसका लाभ कहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है थोड़ा लाभ तो पहुँचेगा, लेकिन अभी हम इस स्थिति में नहीं आए हैं कि जैसा प्रोफेसर अलग साहब सोच रहे हैं कि लोग विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आगे निकल जाएं। अभी बहुत सफर तय करना होगा। मैं एक अपने अनुभव के आधार पर कर सकता हूँ, अपने तजुर्बे के आधार पर गांव में जाता हूँ, देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। अब वो ठीक है, मन में तो एक प्रवृत्ति होती है अगर सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है तो हमें भी मिल जाए, वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन वाकई वास्तविक तौर पर भी ग्रामीण अंचल की स्थिति अभी सुधरी नहीं है और शहरों में भी हम उस तरफ ध्यान न देना चाहें तो मत दें, लेकिन सिर्फ अच्छी सड़कों के किनारे ही लोग नहीं निवास कर रहे हैं, झुग्गियां भी बढ़ती चली जा रही हैं शहरों में भी, बहुत बुरा है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। और अभी संख्या की बात आई, हम लोगों ने देखा, पिछली बार हमने इसी बात का जिक्र किया था कि केंद्र सरकार कहती है कि बिहार में 65 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने उसमें कहा कि ठीक है, इसके साथ 10% ट्रांजिएंट पुअर, यानी हम प्लस ले लें, माइनस नहीं प्लस ले लें तो 72 लाख परिवार। और हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के ही गाइडलाइन 13 पॉइंट पर जो सर्वे कराया, तो पहली रिपोर्ट तो पहले की थी,
कोर्ट वगैरह के ऑर्डर से जो चीज़ रुकी हुई थी बाद में वो सामने आई, तो उसको लेकर किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो हम लोगों ने फिर से कंप्लेंट्स लिए और इसको देखना शुरू किया। तो एक नहीं 2 बार हमने बहुत ही इसका रिवीजन करवाया है लोगों के शिकायतों के मद्देनजर। अर्बन पॉवर्टी का अलग तरीका है, रूरल पॉवर्टी को मेजर करने का वो 13 पॉइंट का तरीका है। तो दोनों मिलाकर हम लोगों के यहाँ अभी एज ऑन डेट 1 करोड़ 40 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और जो प्लानिंग कमीशन का अपना एस्टीमेट्स था 2000 का, उसके हिसाब से लोगों ने 65 लाख का की संख्या तय कर दी बिहार के लिए। अन्य राज्यों के लिए भी इसी तरह से संख्या तय हुई होगी। उस समय एवरेज फैमिली साइज बिहार का आता था 6.16। और अभी हमने जो हाल में कंप्लेंट्स के बाद जो लिस्ट तैयार की है, हालांकि उस पर भी अभी पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं, अभी भी कंप्लेंट्स मिलते हैं। तो अब आया है एवरेज फैमिली साइज हमारे यहाँ बिहार में 3.99, यानी 4। तो फैमिली को स्प्लिट करने की भी एक प्रवृत्ति हो सकती है। और फिर अनेक सिंगल मेंबर फैमिली आते हैं। तो ये जो फिगर है, ये अपने आप में नंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, उनके रास्ते में कठिनाई आएगी। और बीपीएल फैमिली को कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है। अभी तो एक फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात हो रही है, सिर्फ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं है, अन्य प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। उनके हेल्थ केयर के लिए कई प्रकार की सुविधाएं हैं। उसी फिगर से रूरल एरिया में इंदिरा आवास का एंटाइटलमेंट आता है। और कुछ एक वेटिंग लिस्ट होगा, और जो ज्यादा पुअर है उसको पहले मिलेगा, बाद में मिलेगा, नहीं। तो इंटाइटलमेंट एक नहीं और सब्सटेंशियल इंटाइटलमेंट। तो ऐसी स्थिति में कोई एक विषय की बात नहीं है। और अगर अभी तेंदुलकर साहब की रिपोर्ट के आधार पर अगर प्लानिंग कमीशन सिर्फ फूड सिक्योरिटी के मामले में, फूड सिक्योरिटी एक्ट के मामले में कर रही होगी, तो बाकी चीज़ों का क्या होगा? फिर बाकी चीज़ों का एंटाइटलमेंट कैसे तय होगा? तो खैर, आपने जो कहा उससे ऐसा लगता है कि जो प्लानिंग कमीशन का एस्टिमेट्स होगा, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में फिलहाल मानेगी, तो बाकी चीज़ों के लिए इंदिरा आवास और दूसरी चीज़ों के लिए वो चलता रहेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात आई, तो जब उसका ड्राफ्ट आया, तो हमारे ऑफिसर्स हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ मैं देख रहा था, इन लोगों ने तुरंत मेरे ध्यान में बात लाई। साहब, उसमें हमने देखा कि अब रिवाइज करके बिहार के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज का नंबर 65 लाख से घटाकर 61 लाख किया, और कहा कि इन्हीं फैमिलीज को 25 केजी अनाज 3 रुपए पर केजी पर मिलेगा। एक तो 35 को 25 किया, अभी उसकी चर्चा आप कर रहे थे 335 की बात। एनीवे 35 हो जाएगा। हम लोग भी जानते हैं आज का जो प्रोजेक्ट डिस्पेंसेशन है उसमें कौन सी बात अंतिम है। तो अगर बात चल पड़ी है तो ठीक है, 35 हम लोगों को भी उम्मीद है कि हो ही जाएगा। और 3 रुपए पर केजी की बात है, तो उस समय तो ये जो ड्राफ्ट था 3 रुपया 25 केजी, और बिहार के कंटेक्स्ट में 61 लाख समझे। और वो ड्राफ्ट ऐसा था जिसमें कहा गया था कि इसके बाद अगर किसी ने दिया, और उसमें लिखा पूरा, उन्होंने अपने नोट में लिखा है कि साहब ये देखा गया है कि लोग नंबर बढ़ा देते हैं अपने स्टेट में, और एग्जाम्पल दिया कर्नाटक है, कर्नाटक को डेवलप्ड स्टेट, आंध्र प्रदेश, कई राज्यों का जिक्र करते हुए तमिलनाडु के सब लोगों ने कितना बढ़ा दिया है अपना, और सब कुछ देते हैं, कोई टेलीविजन दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहे हैं। तो ये भी कहा, आपने पहला ड्राफ्ट देखा होगा अभिजीत साहब, उसमें कहा कि ये भी इजाजत नहीं हुई। और उस ड्राफ्ट में तो यहां तक कह दिया कि अगर
इसको जो नहीं मानेंगे उन पर एक्शन लिया जाए। 356 तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्शन लेने का क्या तरीका है स्टेट गवर्नमेंट पर, सेंटर का एक ही है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 356। तो एक सुपर 356 भी बना रहे थे, पता नहीं जिसने भी दिया हो। खैर एक हमने उसका तुरंत प्रतिवाद किया, उस पर लिखा और हमने कहा ये क्या मजाक है। तो फिर मेरी बात पर चर्चा करने के बजाय पहले तो मुझ पर अटैक क्या हुआ कि बिहार का मुख्यमंत्री तो बोलता है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के दृष्टिकोण से बीपीएल का नंबर बढ़ना चाहिए और ये कम है, नंबर बहुत कम है, ये सारी बात तो बोलते हैं, लेकिन उनके बिहार में लिफ्टिंग नहीं है। यानी आप जरा समझ लीजिए, मैंने बीपीएल के नंबर को उठाया तो बाजाप्ता फूड मिनिस्ट्री से एक ऑर्केस्ट्रेटेड हम पर हुआ अटैक। कहा गया कि इसके यहां तो लिफ्टिंग नहीं होती है, ये बड़ा बोल रहे हैं। मैंने मेरे ऊपर ये अटैक शुरू हो गया, मैंने किसी इशू उठाया, भाई लिफ्टिंग नहीं होती है तो ठीक है, उसके लिए जो सजा देना हो दीजिए, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। हमने बता भी दिया कि लिफ्टिंग कितनी हुई, फिगर गलत हुआ। ये था इकोनॉमिक टाइम्स ने जो हमने चिट्ठी लिखी वो उनको मिल गया, उसके आधार पर उन्होंने वो एक छाप दिया। तो फिर उसके काउंटर में एक इसी तरह का रिपोर्ट आया। तो इनमें ये कठिनाई झेलते हुए अब तो गतवा वो वेबसाइट से फिर विड्रॉ हो, वो वापिस हो गया वो ड्राफ्ट। लोग ढूंढते रहे कि क्या है फूड सिक्योरिटी बिल का ड्राफ्ट, तो वो नहीं मिलता। उस पर फिर से बहस शुरू हो गई, सारे लोगों ने इस पर कहना शुरू किया और अब तो हम लोगों को कोई चिंता ही नहीं है। अब तो जहां से बात इस पर आ गई है तो कोई रास्ता निकलेगा ही। हम लोग तो जब तक बोल रहे थे तब तक तो हम बोलने वाले कौन होते हैं, तुम्हारे यहाँ तो लिफ्टिंग नहीं। आप जवाब दे लो। तो 3 to 35 की बात जब हो गई, अच्छी बात है, लेकिन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हमने देहात की चर्चा को हम जाते थे, कई जगह पर हमको लोग पूछते हैं कि साहब हमारा नाम नहीं, तो हमने कहा क्यों, बीपीएल में नाम नहीं है। तो कहा कि उसमें तो नाम है ही है, वो 2 रुपया वाला में नहीं। सुन लीजिए लोगों, जिनका नाम बीपीएल में है वो कहते हैं कि 2 रुपया वाला में नहीं, क्योंकि एवाई की बात होती है। तो उसमें 2 रुपया केजी गेहूं, 3 रुपया केजी चावल आज है। तो लोग बोलते हैं कि 2 रुपया वाला में हमारा नाम नहीं, हमारा नाम 2 रुपया वाला में करें। तो जहां ये प्रवृत्ति भी है एक तरफ, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये इनकी जरूरत थी। दोनों चीजों को देखते हुए अगर नंबर के बारे में तेंदुलकर साहब से बातचीत हुई, हमने जब जाना कि उनकी रिपोर्ट में, तो खैर अभी उस दिन की मीटिंग में भी हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि साहब अब इसके बारे में कोई फैसला जल्दी लीजिए। और देखिए नंबर तो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक सक्सेना साहब चाहे जो इसके बारे में मेजरमेंट का, इसके आइडेंटिफिकेशन का जो भी तरीका बताएं, किसी भी तरीके से अगर मेजर हो जाए तो वो नंबर मान्य होना चाहिए, वो नंबर माना जाना चाहिए अगर स्टेट्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। क्योंकि आपने कहा कि एक कॉन्सेंसस बनाओ, कॉन्सेंसस बनेगा साहब कैसे? हमने तो इनहेरिट किया 60-70 लाख वाला बीपीएल का फिगर, हमने उस पर सुधार किया, लेकिन मेरे ऊपर तो वही लोग अटैक किए जिनके समय में ये सर्वे होकर तैयार हुआ था। आप कॉन्सेंसस की बात करते हैं, इस इशू पर कॉन्सेंसस होना किसी भी स्टेट में संभव नहीं है, क्योंकि ये सबसे सशक्त हथियार होता है किसी भी राजनेता के लिए। जो उस समय सरकार पे रहती है पार्टी, उस पर हमला करने, कॉन्सेंसस नहीं बन सकता इन चीजों, इसलिए बनता नहीं है, बन क्यों नहीं सकता? लोगों की इच्छा नहीं, क्योंकि बहुत आसानी से प्रचार हो जाता है कि ट्रैक्टर वाले का नाम है और झोपड़ी वाला छूटा हुआ है। पूछिए कि कौन ट्रैक्टर वाले का नाम है तो कोई लिस्ट नहीं देते। तो इससे एक बात हमने देखा है कि देखिए साहब स्प्लिट नहीं हो रहा है फैमिली का। तो एक मेरा सुझाव होगा कि ये जो फैमिली इंटाइटलमेंट की बात करते हैं उसको इंडिविजुअल
मेंबर्स के आधार पर हर एक फैमिली का एक समान इंटाइटलमेंट नहीं, जो फैमिली का साइज है, मेजर माइनर, उसके हिसाब से जो पहले के जमाने में राशन कार्ड में उनका यूनिट होता था, उस हिसाब से उनको फूड ग्रेन का, एक फैमिली है तो हर एक फैमिली, वो 4 का है, सिंगल मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, ये नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से यूनिट क्या था, इंटाइटलमेंट अगर देंगे तो फिर देखिए आपको फिर थोड़ा सुधार नजर आने लगेगा। जब तक आप ये फैमिली का इंटाइटलमेंट रखेंगे, मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को बार बार हर साल फ्लड आता है तो रिलीफ बांटने के समय में भी कठिनाई आती है। हम लोग जाते हैं रिलीफ मिला तो कहेंगे हाँ हमारा, हमको तो मिला नहीं मिला, तो बगल में पता चलता नहीं इनके फैमिली को मिला। यानी लोग चाहते हैं कि भाई चूंकि फैमिली के आधार पर मिलता है, हमको एक अलग फैमिली मानकर दिया जाए। तो फैमिली को तोड़ने की प्रवृत्ति होती है, स्प्लिट करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इंडिविजुअल इंटाइटलमेंट की बात कीजिए। और दूसरी बात है जिसके बारे में मैं बार बार चर्चा करता हूँ, मैं कोई आरोप के लिए नहीं, पहले तो मुझको था कि अगर आप नंबर कहेंगे कि बिहार के लिए 61 लाख ही होगा तो आइडेंटिफाई आप ही करेंगे। ये तो चलेगा नहीं कि आप कहिएगा कि साहब हमने तो फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, क्रांतिकारी काम किया और राज्य लागू नहीं कर पाता है। और चुनाव का साल में तो और ज्यादा भारी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ आकर मीडिया के सामने और पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ और बात बोलते हैं। प्रवृत्ति है, आप कॉन्सेंसस की बात करते हैं, अभी तो वो डिवीजन का टाइम आ गया, अब कॉन्सेंसस का टाइम कहाँ आ गया। तो वैसी स्थिति में एक रास्ता यह भी है कि साहब आप एक इसके लिए कमीशन या अथॉरिटी बनाए इंडिपेंडेंट, और जो भी सक्सेना साहब मेथोडोलॉजी बनाएंगे उसके आधार पर लोगों की पहचान हो जाए। और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ये हर समय चलता रहे सर्टेन पिटिशन के हिसाब से, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी हो सकती है, उसको अधिकार दिए जा सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकती है। उसके लिए कोई अलग ढांचा खड़ा करने की जरूरत नहीं। वो राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उसमें उस पर्पस के लिए उनके अधीन काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास कोई बहुत बड़ा ढांचा तो अपना नहीं, लेकिन जो राज्यों के अधिकारी होते हैं इलेक्शन के समय में उनके नियंत्रण में आते हैं। उसी प्रकार से एक जगह के लोग दूसरी जगह जाते हैं, उसी प्रकार से एक अथॉरिटी बने। ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करना मुश्किल है। किसी का भी नाम छूटा स्टेट गवर्नमेंट पर आरोप लगता है। इसलिए अच्छा ये है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए, और वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन कोई जबरदस्ती भी नहीं इसमें डाल सकता है किसी का नाम, और उसके आधार पर आप कीजिए। फिलहाल तेंदुलकर साहब ने जो सिफारिश की है तो उसके हिसाब से वो कम से कम आज की स्थिति से काफी बेहतर है, तो कुछ हद तक उसको इम्प्लीमेंट करने में हम लोगों को सहूलियत होगी। लेकिन आइडियल सिचुएशन यही है कि फाइनली जब आइडेंटिफाई करने का तरीका निर्धारित हो जाए तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बने, और वो इंडिपेंडेंट बॉडी के साथ राज्य सरकार जुड़े, वो बाउंड होंगे, उनके कलेक्टर्स, उनके जिस लेवल के भी ऑफिसर्स होंगे उसके लिए काम करेंगे। तो फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उस पर ये कोई आरोप नहीं लगाएगा कि छूट गया, किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहता है तो कोई स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन के यहाँ दरखास्त लगाता है कि साहब मेरा नाम छूटा। जब इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है तो उसमें जाते हैं, तरह की बात होती है। आदमी कोई है, चेहरा कोई लग जाता है पहचान पत्र, तो भी कोई सरकार की शिकायत तो करता नहीं। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, गलतियां हो सकती है। सेंसस का ऑपरेशन चल रहा है, गांव का गांव सेंसस के ऑपरेशन में छूट जाता है, वो गांव वाले कुछ नहीं करते, किसी गवर्नमेंट पर ब्लेम नहीं आता। तो अगर बीपीएल में अगर हम सचमुच लोगों को पहुंचाना चाहते हैं लाभ, और एक समय सीमा जितना काम हो रहा उसका रिफ्लेक्ट करे ऊपर, तो ये करना चाहिए। दो चीजें मेरी समझ से बहुत जरूरी है। और पीडीएस के बारे में मेरी अपनी राय है कि आप चाहे जितना इसको सुधारने की कोशिश करें साहब, 4 साल में अगर सबसे अधिक समय मैंने लगाया होगा तो पीडीएस को सुधारने में। बाकी अब जिनको कुछ नहीं करना रहता होगा उनको शायद नहीं पता रहता होगा। मैंने कितना घंटा लगाया
इसको सुधारने के लिए, एक चीज सुधारने के लिए कि इसमें कूपन दे दें तो ठीक हो जाए। हम एक सुधारने में लगते हैं और बेईमानी करने वाले लोग उसमें से रास्ता निकालने में लगते हैं। किस तरह से लीकेज होता है सब आप लोगों को लगता होगा, हम लोगों को तो कितना कष्ट होता है भीतर से कि इसके लिए इतना सोचने के बाद। इसलिए हम अब एक नतीजे पर आ गए, आप लोग इसको मानिए नहीं मानिए कि साहब जो हमने कहा लिस्ट बन जाए, कौन इंटाइटल्ड है पीडीएस में ये तय हो गया, क्या रेट उनका है ये तय हो गया, और साहब उनको सीधे उनका बैंक में अकाउंट खुलवाइए और सीधे कैश ट्रांसफर उनको कर दीजिए, बाजार से खरीद देगा। लोग कहते हैं साहब वो खरीदेंगे नहीं, कोई और काम करेंगे। आप कब तक ये मोरल गाज, जिसके पेट में भूख लगेगी पहले खाना खरीदेगा। ऐसी बात नहीं है, कुछ इक्के दुक्के लोग होंगे जो अगर उनके हाथ में नगद आएगा तो कुछ और चीज ले लेंगे, सेवन कर लेंगे, ऐसे भी ले लेते हैं। आए दिन घटनाएं घटती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पीडीएस में उनको अनाज का एंटरटेनमेंट करते हैं तो ठीक ही रहता है। अनाज लेकर के उसको बाजार में बेच करके पीने वाला पी लेगा, तो बहुत तरीका है। लेकिन इसके बारे में देखिए गौर, आप जरा सोचिए कि पीडीएस के संचालन में कितना बड़ा तंत्र लगा हुआ, कभी आपने सोचा कितने लोग लगे हुए, कितना बड़ा एफसीआई। और मेरी तो अपनी समझ है कि सब तो ठीक किया जा सकता है इस देश में, एफसीआई ठीक करना मुश्किल कितना है। एक तरफा हर चीज उनके हक में बनी हुई चीजें। अब हम लोग क्या है, जब मर्जी तो प्रोक्योरमेंट करेंगे, जब मर्जी नहीं करेंगे प्रोक्योरमेंट। हमारे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ नहीं मिलता, प्रोक्योरमेंट का लाभ मिलता है। पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, थोड़ा बहुत इन दिनों एक दो और राज्य इसमें आए हैं। हम लोग तो कोशिश करते हैं, तो अपने लेवल पर प्रोक्योरमेंट की का रिव्यू करते हैं, मॉनिटर करते हैं। खैर उस विषय पर आप जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जितने लोग लगे रहते हैं, पीडीएस के लोग जिनको ये काम करने की जिम्मेवारी मिलती है, आपको आश्चर्य होगा हमारे यहाँ बिहार में हमेशा आंदोलन होता है कि पीडीएस के डीलर को सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकर उनको कहते हैं कि इनको एब्जॉर्ब करेंगे सरकारी नौकर की तरह पीडीएस के दुकानदारों को। ये बिहार है, ये मांग भी होती है। शायद आप लोग आश्चर्य में पड़ेंगे, लेकिन रेगुलरली हर बार ये मांग होती है। तो कितने लोग लगे हुए हैं इस काम में, अगर सीधे हम लगा दे तो सारा काम बंद हो जाएगा। डायरेक्ट लगाइए, प्रोक्योरमेंट हो, फूड सिक्योरिटी के लिए हमारे हाथ में स्टॉक हो, रेगुलर इंटरवल पर वो स्टॉक मार्केट में रिलीज भी होता रहे, हमारे पास होना चाहिए। किसानों को एमएसपी भी दिलाया जा सकता है, मार्केट में उसको रिलीज भी किया जा सकता है। लेकिन कितने प्रकार का खर्च है उसमें इनको, आप तो 30,000 करोड़ की सब्सिडी इस पर वोट कर रहे हैं। ये एफसीआई का जो यहाँ से वहाँ जाने आने का समूचा नहीं करते ना। अब आप सुनिएगा तो कहिएगा कि पंजाब और हरियाणा में प्रोक्योरमेंट होता है तो वहाँ के लोग कहेंगे कि माल जल्दी ले जाओ यहाँ से बाहर। और बिहार में जब प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो पंजाब के गेहूं से बिहार का एफसीआई के गोडाउन पर, तो बिहार का जो गेहूं प्रोक्योर होगा वो कहाँ रखा जाए? तो जो जहां प्रोक्योरमेंट वहां रखिए। तो कई प्रकार की समस्याएं हैं। ये काम हो एफसीआई का, प्रोक्योरमेंट का काम हो, फूड सिक्योरिटी के लिए हमारे पास बफर रहना चाहिए। लेकिन ये जो पीडीएस के माध्यम से हम दे रहे हैं, इतना बड़ा जो डिलीवरी का सिस्टम है, और सचमुच वो बहुत ही फॉल्टी है। मैं दिल से इस बात को कह रहा हूं, मैंने मन से और दिल से एक एक ढंग से कोशिश की है कि इसको कैसे सुधार ला दें। साहब कुछ सुधरता है, अगले 2 महीने के बाद फिर जैसे वो कहावत है ना, बड़ी अच्छे संदर्भ में, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात ऐसी है कि आदत जाती नहीं हमारी। होता ही नहीं है। हम तो 2 महीना 3 महीना कुछ टाइटन करवाते हैं, खुद सबसे बात करेंगे कि भाई वहां क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा। हमारे ऑफिस से एक एक गांव का टेलीफोन नंबर हमने इकट्ठा करवाया, और हमारे ऑफिस से फोन करके यूं ही गांव में रैंडम पूछता कि साहब आपको अनाज मिला। मैं इस लेवल पर जाकर तो मॉनिटर करते हैं, इसके बाद भी सुधरता है। इसलिए
सबसे अच्छा उपाय है, इनको समाप्त करिए, सीधे जनता जिसको मिलना चाहिए उसके हाथ में पैसा पहुंचा दीजिए। ये उस पर है, कुछ खर्च हो सकता है इधर से उधर हो, लेकिन ज्यादातर लोग खाने के काम में ही खाने के पैसे को लगाएंगे और इसके लिए एक सोशल मूवमेंट हो सकता है। जो सिविल सोसाइटी है वो भी इसके लिए एक वातावरण बना सकती है। तो ये काम करना चाहिए और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। और हम लोगों का जो प्रयास है दोनों तरफ से, पॉवर्टी रेडिकेशन, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा, दूसरी तरफ जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं उनके लिए आपका भी काम करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे। दोनों करते हुए हम लोगों की कोशिश होगी कि अल्टीमेटली गरीब लोग गरीबी रेखा के ऊपर जाएं, वो गरीबी रेखा के नीचे न रहें। बीपीएल के श्रेणी में बने रहना कोई इज्जत की बात नहीं है और न ही कोई ये विकास की निशानी है। लेकिन हाँ, सिर्फ इसलिए कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है जरूर इतना ग्रोथ होना चाहिए, इस नाते हम गरीबी के फिगर को सप्रेस करें तो ये अपने आप को उठा देंगे। एज ऑन डेट शुरू करें, कभी तो फाइनलिटी होगी, इससे अच्छी क्या बात हो। और मैं तो समझ रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग आप लोग आए हुए, आप सब लोग मिलकर के देश के बारे में तो सोचिए ही, हमारे बिहार के बारे में कुछ जरूर बता कर जाइए। वलक साहब तो बात और लोग तो आए, लेकिन अलग साहब का कार्यक्रम बना था पहले भी 2 बार, लेकिन किसी प्रकार से वो आ नहीं पाए। तो आज मुझे खुशी है कि आप आए और आपने ये वादा किया है कि अगर हम कुछ बिहार के लिए आप लोगों की मदद कर पाएँ तो मुझे खुशी होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सब लोग आए, कुछ हमको नुस्खा बता कर देंगे, कुछ प्रिस्क्राइब कीजिए ऐसी चीज जिसमें जरा तेजी से हो। और हम खुद ही ये ग्रोथ स्टोरी की बात है, मैंने नहीं किया, मैं सच बताता हूँ। अनावश्यक हमको आजकल बहुत लोग जलने लगे, दिक्कत नहीं, खुद लोगों को परेशानी हो रही है, हम खुद ही भागना चाहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन बिहार में एक चीज तो परिवर्तित हो गया। अब पहले लोग इसकी चर्चा करते थे कि क्राइम की क्या स्थिति, और आजकल चर्चा कर रहे हैं ग्रोथ रेट क्या है। ग्रोथ रेट सही है या गलत है, ये तो परिवर्तन हो गया। इतना चेंज के लिए तो कुछ आज की सरकार को आप श्रेय देना चाहेंगे, लेकिन ग्रोथ हो गया, मैं कोई दावा नहीं करता। बहुत कुछ करना, बहुत आगे जाना, बहुत पीछे है, बहुत आगे जाना, लेकिन हम सिर्फ सोचे कि हम बहुत पीछे हैं और कुछ ना करें, इसमें मेरा यकीन नहीं है। जो भी कर सकते हैं हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और जब भी आप जैसे विद्वज्जन, अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ हम लोगों को कुछ सुझाव देंगे तो उसका स्वागत करते हैं। और इस सेमिनार का अलग नारायण जी हम लोग उत्सुकता से इंतजार करते रहेंगे कि आपके इस सेमिनार का क्या नतीजा हुआ। कृपा करके मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि जो भी सेमिनार में बात होती है पूरी प्रोसीडिंग बननी चाहिए, और एक एक चीज का और अंत में आप सब लोग उसको लेकर हमारे लिए क्या सुझाव, ऐसा कुछ इससे विमर्श करें तो बड़ी खुशी होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से, खास करके बिहार के गरीब लोगों की तरफ से, और ज़्यादातर तो गरीबी लोग हैं, लेकिन भले ही आर्थिक रूप से गरीब हों, लेकिन बिहार के लोग मन से गरीब नहीं, मन से बहुत अच्छे हैं। अगर कोई गरीब भी है तो वो मन से काफ़ी ठीक ठाक रहता है, गरीबी में भी वो रोता नहीं। आपको बिहार में गरीबी के बावजूद रोते हुए लोग कम मिले, तो ये तो बिहार की खासियत है। तो उस बिहार की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और इस सेमिनार के लिए मैं दोनों को, तीनों उनके जो पार्टनर्स हैं उनको, ISD को, आदरी को, UNDP को, सबको मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। I invite Dr. Saiba Gupta, Member Secretary, Agent. Participants, ladies and gentlemen,
I have been entrusted with the responsibility of proposing vote of thanks at the end of this glittering inaugural session of the International Seminar of Poverty in Bihar Pattern Dimension Eradication Strategy. In a way, the sequel to an earlier international seminar on revisiting about 3 years ago in 2007. Dr. Sharma as well as Honorable Chief Minister mentioned about this, the poverty to be highly questionable. He then exhorted us to revisit the poverty issues at a conceptual level, which resulted the conference. In spite of these several demanding engagements, his inaugural address spells out the broad contour of the poverty management efforts and reform attempts in the state, while working out the nuts and bolts. लोग आए हुए उन लोगों की बात सुनिए गौर से। हम लोग भी इस प्रकार के सेमिनार में, संगोष्ठी में इसलिए जाते हैं कि जो विद्वत जन, अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ निरंतर काम करते रहते हैं, उनकी बात सुनने से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। दरअसल पटना में आज से 2 साल 10 महीना पहले, लगभग 3 साल पहले, जो गरीबी के संदर्भ में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, जिसमें देश के बाहर के भी अर्थशास्त्री आए थे, और उस सम्मेलन के बाद एक पटना कॉन्सेंसस के नाम से एक डॉक्यूमेंट भी, दस्तावेज जारी किया गया था, और उसके बाद ही फिर से हरकत हुई और केंद्र सरकार ने पॉवर्टी के मेजरमेंट के बारे में और बीपीएल की संख्या के बारे में नए सिरे से विचार करना शुरू किया, और उसी का परिणाम है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में एनसी सक्सेना कमेटी और प्लानिंग कमीशन में, योजना आयोग में श्री तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली कमेटी। तो इसके फायदे होते हैं, और आज भी जो चर्चा हुई तो लोगों का जो अपना तजुर्बा है, अनुभव है, अभी गरीबी मिटी नहीं है, और गरीबी की संख्या को कम करने से गरीबी मिटेगी नहीं, बल्कि जो भी है उसको प्रकट करना चाहिए। और मैंने तो बार बार हर फोरम पर ये मांग की है कि गरीबों की पहचान के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित होना चाहिए, और वह इस काम को निरंतर करता रहे। अगर किसी का नाम छूट गया तो उसको जोड़े, किसी का नाम गलत आ गया है तो उसको हटावे, यह काम करे, और राज्य सरकार की मशीनरी उनकी मदद के लिए सामने आवे। तो आज जो कई प्रकार का संतोष होता है कि हमारा नाम छूट गया, गलत आदमी का नाम जुट गया, तो ये डिबेट बंद हो जाए, और फिर जिनका इंटाइटलमेंट है, जिनको जो मिलना है, वो चीज़ उनको पहुंचाया जा सकता है। और दूसरी नीति विषयक बात जो मेरी समझ में है, बिहार ही नहीं देश भर के लिए व्यावहारिक है, वो है कि सीधे सामान देने के बजाय आप प्रत्यक्ष तौर पर उनको पैसा दें, ताकि ये जो भ्रष्टाचार है वो मिट जाए। जो लाभान्वित है उसके खाते में सीधे पैसा चला गया, और वो अपनी इच्छा से उसका काम करे। ये तो पीडीएस सिस्टम को खत्म करने की बात है, तो इसको लागू करेंगे क्या सर? जो बैंक अकाउंट की बात करें, इसको लागू किया जाएगा क्या? नहीं, हमारे हाथ में नहीं है ना, तो नीति की बात कर रहे हैं, मेरे हाथ में थोड़ी है। मेरा तो सुझाव चल रहा है, मैंने तो अपने मैनिफेस्टो में भी हम लोगों की पार्टी ने डाला, हम लगातार जो बैठक होती है उसमें हम इसका उल्लेख करते हैं। आज भी एक ऐसा अवसर था जहां हमने उल्लेख किया, और धीरे धीरे इस बात पर लोगों का ध्यान जा रहा है। पीडीएस सिस्टम क्या खत्म करने की भी कैश ट्रांसफर करिए, ये भारी भरकम सिस्टम रखने से, इसको सुधारने से भी पूरे तौर पर सुधरता तो है नहीं। इसलिए एक बारगी जो लाभान्वित है उसको कैश दीजिए, जितना आपको देना है वो अपना उसका लाभ उठा लेगा। अब ये सामान पहुंचाने में इतनी जगह कहाँ गायब होता है, जहाँ जाना है दुकान में, पीडीएस के दुकान में, उसके बजाय बाहर निकल जाता है। कितनी जांच, कितनी कार्रवाई चलती रहती है।